Good morning, students. Please rename yourself with your roll number so that I can note down your attendance. All right. So, in our earlier lecture, that is on Saturday, we have started with the module number 1, that is Laplace transform, wherein we have studied some formulas. The definition of Laplace transform, that Laplace transform of f of t is given by integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt, right? Where the right hand side, if the right hand side integration exists, then you can say that this is the Laplace transform of the function f of t, right? Next is sufficient condition for existence of Laplace transform. Laplace transform will be exist when if f of t is piecewise continuous in every finite interval 0 to t and is of exponential order. That means दो condition वो function satisfy करना चाहिए. First is piecewise continuous and second is exponential order. Then we can say that the Laplace transform of f of t exists for s greater than a, right? Next is linearity property. If k1 and k2 are constants, then the Laplace transform of k1 f1 of t plus k2 f2 of t is given by k1 Laplace of f1 of t plus k2 Laplace of f2 of t, right? Then there are some standard formulas that Laplace of k is k upon s, Laplace of 1 is 1 upon s, Laplace of e raised to it is 1 upon s minus a, Laplace of say sine of at is a upon s square plus a square, Laplace of cos at is s upon s square plus a square, and likewise. So we have few formulas. Then we have studied some examples based on these basic formulas. Then a few more formulas using the definition. If whenever there is a question for evaluation, you have to first of all compare it to the definition, check what are the differences and what are the similarities, and accordingly you have to find the Laplace transform of the actual function and then put the value of s whatever given in the example. Is it right? Right? Next here, change of scale property, first shifting property. Change of scale is if Laplace of f of t is phi of s, then Laplace of f of a t is 1 upon a phi of s minus a, right? Then next is a few examples again. Then some formulas, trigonometric formulas. We have already studied these formulas to sine a cos b, sine of a plus b plus sine of a minus b, and likewise the remaining formulas. Using this, we have to solve the example. Next is second shifting property, although it is not very important, but the next property, that is the multiplication by t property, it is very much important. That if Laplace of f of t is phi of s, then Laplace of t raised to n is f of t equal to t raised to n into f of t is equal to minus 1 raised to n dn raised by ds raised to n into phi of s. That means उतनी बार आपको उसका डेरिवेटिव लेना होगा, right? Next, few examples based on that we have solved. Then some evaluation also we have solved. Again, compared with the definition and then check what are the similarities and what are the differences, and accordingly use the property, right? Next, let us see division by t property. यहाँ तक किसी को डाउट था क्या? कल जितना भी लास्ट लेक्चर में जितना भी हुआ है, इसमें किसी को डाउट है? बॉयज एंड गर्ल्स, लेक्चर नंबर 4, नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी ऑब्वियसली, इवैल्यूएशन भी हमारा हो चुका है. आज 1 1 hour 30 या 1 hour 20 minutes का लेक्चर रहेगा हमारा. मल्टीप्लिकेशन बाय टी के बाद हम लोग आते हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे. Let me first of all write down the definition, how to evaluate division by t property. Effect of division by t. Effect of division by t property.
ठीक है। सबसे पहले इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ उसी फंक्शन को अगर मैं 1/t से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फिर t से डिवाइड कर रहा हूँ इनटू एफ ऑफ टी, इट इज गिवन बाय सेम फंक्शन फाई ऑफ एस इंटीग्रेटेड फ्रॉम एस टू इंफिनिटी इनटू ds। देखो लैप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी में आप डेरिवेटिव ले रहे थे और डिवीजन में आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको समझना है तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर डिफ्रेंशिएटिंग डेरिवेटिव। और डिवीजन बाय टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन बाय टी, तो आप कर रहे हो इंटीग्रेशन। ये आप याद रखने के लिए इजी रहेगा आपको, ठीक है। एंड देयरफॉर वी हैव whenever there is a function say f of t equal to phi of s, then the Laplace transform of 1/t into f of t, that is nothing but f of t upon t is nothing but integration s to infinity phi of s into ds, right। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे बेसिक से। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन हमेशा सेम रहता है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग, राइट। सो वो होगा फर्स्ट क्वेश्चन 1/t इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ टी, बराबर है क्या। अब सबसे पहले जब भी आपको 1/t यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पे डिवाइड बाय टी लिखो तो भी चलेगा। अगर ऐसा है तो इन दैट केस आपको 1/t हटा के जो फंक्शन बचेगा दैट विल बी योर एफ ऑफ टी। हियर एफ ऑफ टी इज 1 माइनस कॉस ऑफ टी। सबसे पहले आपको उसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इट इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ टी। बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये सेपरेट होगा, लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ टी। व्हाट इज लैप्लास ऑफ 1, 1 अपॉन s माइनस लैप्लास ऑफ कॉस टी कितना होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, बराबर है ये। नेक्स्ट अब आपने ये फाइंड आउट किया, दिस इज योर फाई ऑफ s, ये है आपका phi of s for the Laplace transform of f of t. The rule says that if you have a function f of t and its Laplace transform is phi of s, then the same function divided by t is given by the integration from s to infinity of the phi of s, and therefore Laplace transform of 1 upon t into 1 minus cos t का formula क्या होगा, it is nothing but integration from s to infinity of phi of s into ds, but इस केस में phi of s क्या है हमारा 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस, बराबर है क्या ये। आप अपना हैंड रेस कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो। देन इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर लोगे, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस इंटू डी एस माइनस इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस, राइट। अब इसका तो इंटीग्रेशन आपको आता है, दिस इज व्हाट log s, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट log ऑफ f ऑफ x। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, बस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, s स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2s, लेकिन सिर्फ यहाँ पे s है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 करना पड़ेगा। दैट मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 सो दैट आप ये फॉर्मूला यूज कर सको, डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड देयरफॉर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन s इज log ऑफ s माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 अपॉन 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इंटीग्रेशन का अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करना है फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अगर आप डायरेक्टली पुट करेंगे इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा, log इनफिनिटी नॉट डिफाइन है, यहाँ पे भी नॉट डिफाइन है, तो आपको यहाँ पे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा और फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट करो। सो देखो यहाँ पे अगर मैं 1/2 को कॉमन लेता हूँ दोनों में से, तो यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इफ आई टेक 1/2 कॉमन तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा log ऑफ s, बराबर है। या अगर आप मैं -1/2 ही कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा -2 log s,
और ये बन जाएगा प्लस 1/2, 1/2 जा चुका है, प्लस 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 एस टू इन्फिनिटी। अब ये क्यों कर रहा है देखो, अगेन सिंप्लीफाई दिस माइनस टू वन एज इट इज, ये जो प्लस है इसको पहले लिखता हूँ मैं, log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log है। अब लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी ये भी है कि log m रेज टू n इज गिवन बाय n log m, बराबर है क्या, राइट। एंड देयरफॉर ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन रहेगा, log ऑफ एस स्क्वायर बन जाएगा फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, राइट। अब log m अपॉन n या की फॉर्मूला क्या है, log m माइनस log n। आई होप आपने ये प्रॉपर्टीज देखे हैं, मैं बस आपको फॉर्मूलाज दे रहा हूँ जो हमको यूज करने हैं। तो यहाँ पे होगा माइनस 1/2 एज इट इज log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। मैंने सिर्फ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से यहाँ तक किया है। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो a प्लस बी डिवाइड बाय सी है, a प्लस बी डिवाइड बाय सी, सो आई कैन राइट दिस एज a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। सो ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1/2 एज इट इज log ऑफ, अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो ये बनेगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर दैट इज log 1 माइनस या प्लस, यहाँ पे होगा प्लस 1/, इसको चाहिए तो आप सेपरेट नहीं करो अभी, 1 प्लस ये होगा 1/, एस स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आ रही है आपके, आपने सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, राइट, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि इसके बाद आप इजीली कर सकते हो। दिस इज माइनस 1/2 एज इट इज इनसाइड log एज इट इज, सबसे पहले 1 प्लस 1/, इन्फिनिटी आ रहा है, अपर लिमिट, इन्फिनिटी स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको, माइनस साइन लोअर लिमिट log ऑफ 1 प्लस 1/, एस की जगह पे एस ही आ रहा है यहाँ पे, तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर ही रहेगा, राइट। अब सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज नथिंग बट माइनस 1/2 एज इट इज, any number divided by infinity is very close to 0 and therefore it is equal to 0। आई होप ये भी आपको पता हो। इन्फिनिटी बहुत लार्ज नंबर है, अगर डिनोमिनेटर में वो डिवाइड होता है किसी भी बड़े नंबर को, तो भी वो आंसर 0.00 मिलियन जीरो के बाद कहीं एक पॉइंट देगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है log ऑफ 1 प्लस 0 माइनस log ऑफ 1 प्लस 1/s स्क्वायर। बट log 1 क्या होता है, सारे फॉर्मूलाज आपको राइट हैंड साइड पे दे रहा हूँ, log 1 इज 0 एंड देयरफॉर आपका आंसर होगा 0 माइनस log ऑफ 1 प्लस 1/s स्क्वायर। ये माइनस 1/2 और ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये बनेगा 1/2 log ऑफ, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। अगर आप शॉर्ट में देखेंगे तो हमने जब यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, सिर्फ प्लस साइन आ गया, 1/2 1 प्लस log ऑफ एस स्क्वायर है, वही टर्म आपकी दोबारा आ जाती है। लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए, बुक में डायरेक्टली आपको यहाँ से डायरेक्टली ये दिया है और बोला है नोट दिस केयरफुली, तो ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। आ गया समझ में, राइट हैंड साइड के फॉर्मूलाज देख लेना। किसी को डाउट है, रेज योर हैंड। नहीं है किसी को डाउट? जो लोग बाय नेम ज्वाइन हुए हैं प्लीज रीनेम योरसेल्फ, बिकॉज मुझे स्क्रीनशॉट लेना है इसका। 8:20 होते आया है, जल्दी से लास्ट 1-2 मिनट देता हूं मैं, आप अपना रोल सर नंबर पहले लिखो और फिर आपका नाम लिखो। हाँ बोलो सर, ये फुल पेज का न्यूमेरिकल को दिखाई ना फोटो, फुल पेज दिखाओ। देखो पूरा हाँ, आड़ा कर दो सर, आड़ा हो जाएगा ना, ऐसा आड़े में आ दिखेगा? जाएगा। हाँ सर, हाँ हाँ दिखेगा। यस सर। बाकी लोग रीनेम करो अपने आप को जल्दी से, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, आपका रोल नंबर एंड देन आपका नाम लिखो। अरफात अफरोज थैंक यू म्यूट सर। योरसेल्फ। ओके थैंक यू। चलो सबने रीनेम कर लिया है क्या? पठान फरियाल, आप सुनाई दे रहा है आपको? कर रही हूँ सर, वेट। हाँ कर लो। ओके, आया सबको समझ में ये क्वेश्चन? इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी ज्वाइन कर रहे लोग।
820 का पता था क्या? ऐसा मत करो। आप ईमानदारी से लेक्चर के लिए आओ, क्योंकि ये आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं। अगर आप देखेंगे तो मैं मॉर्निंग में इतना जल्दी आके आपको लेक्चर ले रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा 100% सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। सो आप भी अगर पॉजिटिव रहेंगे और डेली लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। अहमद रजा, आप अभी ज्वाइन किए हो, लेकिन आपको रोल नंबर आपका जो है वो लिखना है यहाँ पे। आपका रीनेम करो, रीनेम योरसेल्फ एज योर रोल नंबर, अदरवाइज वो अटेंडेंस में काउंट नहीं कर पाऊंगा। आप ईटी के हो या इलेक्ट्रिकल के हो वो नहीं पता है मुझे। अहमद रजा सिर्फ लॉगिन करके छोड़ दिए शायद। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल। है सबको समझ में ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शेख अहमद रजा को कोई पहचानता है तो उसको कॉल करके बोलो रीनेम करने के लिए। बस ऑन करके रख दिया है शायद। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 8 8 ऑलराइट, म्यूट कर दो अभी जिनका जिनका हो गया है। फरियाल, आपका अभी तक भी नहीं हो पाया? हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाय t। डिवीजन बाय t है, आपको भी पता है कि डिवीजन बाय t रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा, राइट। सो सबसे पहले तो ये डिवीजन बाय t छोड़ के जो फंक्शन है आपका उसको रीनेम इट एज साइन स्क्वायर 2t एज f ऑफ t, राइट। अब इसको सॉल्व करना हमारे पास डायरेक्टली लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, बट इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ 4t डिवाइड बाय 2, एज वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, या आपको चाहिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। उसी का फॉर्मूला यहाँ पे किया है, 2t था तो इसलिए डबल किया उसका। एंड देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, आपको उसका क्या करना है, लैप्लास फाइंड आउट करना है, दैट इज साइन स्क्वायर 2t is equal to Laplace of 1 minus cos of 4t divided by 2। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, टेकन आउटसाइड, अंदर होगा Laplace of 1 minus Laplace of cos of 4t, राइट। सिंप्लीफाई करो, 1/2 as it is, Laplace of 1 is 1 upon s minus Laplace of cos of 4t। cos of 4t कितना होगा, s upon s square plus 4 square। ये हो जाएगा आपका फाई ऑफ एस। सबको आया समझ में? ये फाई ऑफ एस कैसे आया, तो नॉर्मल लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया, राइट। अब आते हैं हमारा डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे। लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी फाई ऑफ s इंटू डी एस। लेकिन इस केस में हमारा फाई ऑफ s क्या है, 1/2 1 upon s minus s upon s square plus 4 square into ds। इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। दिस विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी, 1/2 कांस्टेंट है, आप बाहर ले सकते हो, और आप चाहिए तो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए वो उसको टोटली कर्ली ब्रैकेट के बाहर रखो और फिर इन दोनों इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर लो। 1/s इंटू डी एस माइनस इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू डी एस। अब इनको दोनों को सिंप्लीफाई करना है। इसका तो इंटीग्रेशन log s है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव है 2s, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, राइट।
and therefore this will be 1 upon 2 as it is. Integration of this is log s minus 1 upon 2 log of s square plus 16, या 4 square लिखना है तो 4 square लिखो, from s to infinity. Now put the upper limit and lower limit. क्या हो जाएगा 1 upon 2 as it is. आप चाहिए तो minus 1 upon 4 बाहर ले लो, so क्या होगा 1 upon 2 into minus 1 upon 2 taken common, तो यहाँ पे आपको minus 2 into log s से multiply करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे होगा log of s square plus 16, राइट. log m minus log n का प्रॉपर्टी है, दिस इज minus 1 upon 4, ये 2 को भी आप शिफ्ट कर देंगे ऊपर, तो ये आएगा log of s square plus 16 डिवाइड बाय s square. log m माइनस log n, और log m रेज टू n भी है यहाँ पे, राइट. जिसको किसी को डाउट है प्रीवियस पेज पे सारे फॉर्मूलाज है, उन्हीं को रेफर किया है. अब पुट करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, लेकिन उसके लिए सेपरेट करेंगे पहले इसको. माइनस 1 अपॉन एस ए प्लस बी डिवाइड बाय सी है, तो क्या होगा इसका log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इज 1 प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर फ्रॉम एस टू इंफिनिटी. अब पुट करो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 4 एज इट इज. log ऑफ, पुट करो अपर लिमिट यहाँ पे, दिस विल बी 1 प्लस 16 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस 16 अपॉन एस की जगह पे एस ही आ रहा है, सो दिस इज एस स्क्वायर. आपको पता है दिस इज नथिंग बट 16 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर इज वेरी क्लोज टू 0, क्योंकि इंफिनिटी बहुत लार्ज नंबर है, and therefore this will be nothing but minus 1 upon 4 log of 1 plus 0 minus log of 1 plus 16 upon s square बराबर है. अब ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज 0, एंड therefore आपका आंसर होगा माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 0 माइनस log of 1 plus 16 upon s square. अब ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, दिस विल बी 1 अपॉन 4 log ऑफ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एस स्क्वायर प्लस 16 बाय एस स्क्वायर. ये होगा आपका फाइनल आंसर. आया सबको समझ में कैसे कर रहे हैं? तो बहुत इजी है अगर आपने एक बार समझ लिया एग्जाम्पल को, तो ठीक है. आ रहा है क्या बॉयज समझ में? डाउट रहेगा तो पूछो. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ. अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है इसमें. फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of at divided by t. Does Laplace transform of cos of at divided by t exist? Does Laplace transform of cos of at divided by t exist? सबसे पहले तो इसका Laplace find out करना है. That is to find Laplace of sin of at divided by t, यानी division by t प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है इसको. सबसे पहले क्या करते हैं, लेट f of t क्या होगा, t डिवाइड t हटा के जो पार्ट बचेगा दैट इज योर फंक्शन sin of at. इसका लैप्लास फाइंड आउट कर लो. लैप्लास ऑफ f of t is nothing but Laplace of sin of at. What is Laplace of sin of at? a upon s square plus a square. ये हुआ आपका phi of s, बराबर है क्या? अब क्या करना है आपको, डिवीजन बाय टी है मतलब इस phi of s, यानी इसके लिए इंटीग्रेशन करना होगा फ्रॉम s टू इंफिनिटी. Therefore Laplace of f of t divided by t is nothing but integration from s to infinity of phi of s into ds, that is nothing but integration from s to infinity a upon s square plus a square into ds हो जा रहा है. ये a तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, बराबर है. सो कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करो. व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स, बराबर. सो दिस विल बी a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी 1 upon s square plus a square into ds, that will be nothing but tan inverse of s upon a into 1 upon a भी मल्टीप्लाई होता है इसको,
फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। क्या ये फॉर्मूला याद है सबको? क्या लिखना पड़ेगा? इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स इज गिवन बाय 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? दिस विल बी नथिंग बट ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स ऑफ s अपॉन a फ्रॉम इन्फिनिटी टू s या s टू इन्फिनिटी, राइट। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ s की जगह पे इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी अपॉन a माइनस tan इनवर्स ऑफ s की जगह पे s e आ रहा है। यहाँ पे हमको देखना है सिर्फ, ये तो एज इट इज रहेगा, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी अपॉन a इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s upon a. This implies this is tan inverse of infinity is π/2 minus tan inverse of s upon a. अब 90 minus tan inverse of s upon a is given by cot inverse of s minus a. Cot inverse of s upon a. So ये होगा हमारा फाइनल आंसर for the function Laplace of sin of 80 upon t. This is your answer. राइट। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 अपॉन टी, वो तो आ गया है, वो है कॉट इनवर्स ऑफ एस अपॉन ए। अब बोला है कि डज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 80 डिवाइड बाय टी एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट भी होगा या नहीं होगा वो देखना है सिर्फ, राइट। सो क्या होगा? दिस विल बी, नाउ कंसिडर, क्या करेंगे? कंसिडर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 80। अब आपको इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। इसका लैप्लास क्या होगा? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग बट, क्या होगा लैप्लास? लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, राइट। दिस इज योर फाई ऑफ s, बराबर है। अब लैप्लास ऑफ cos ऑफ 80 डिवाइड बाय t का हमको फाइंड आउट करना है, यानी डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी है। डिवीजन बाय t का प्रॉपर्टी का मतलब है इंटीग्रेशन करो फाई ऑफ s इंटू डी एस को, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एस, बराबर है क्या? दिस इज नथिंग Yes, बट sir. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस? इसको, इसका डेरिवेटिव है 2s, तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा आपको, राइट। So this will be nothing but 1/2 log of s square plus a square and then upper limit lower limit from s to infinity। अब यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर की टर्म ही नहीं है कि आप प्लस माइनस कर दिए 1/1 प्लस a स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया और इन्फिनिटी आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट किया, वैसा नहीं है। आप डायरेक्टली पुट करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है log ऑफ इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो log ऑफ इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड एंड देयरफॉर सिंस, अगर डिफाइन ही नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। सिंस log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेंड्स टू इंफिनिटी एज is infinity tends to as s tends to infinity and therefore infinity मतलब not defined and therefore क्या होगा? therefore Laplace of cos of 80 divided by t does not exist, does not exist। आ रहा है समझ में क्यों एग्जिस्ट नहीं हुआ? क्योंकि जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो वो आपको आंसर नहीं दे पा रहा है। आंसर आएगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। आ रहा है सबको समझ में? बराबर है, ठीक है। अब 3 एग्जांपल्स हुए इस पे। अब आते हैं कुछ इवैल्यूएशन के टॉपिक पे। 3 क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट है इवैल्यूएट। अगर इवैल्यूएट करना है इसका मतलब डेफिनेशन को ही यूज करना है और प्रॉपर्टी को। एग्जांपल नंबर 4, इवैल्यूएट evaluate integration 0 to infinity cos of 80 माइनस cos of bt। ये इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड बाई t इंटू डी टी। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 2t, यहाँ पे 3t, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे नंबर चेंज करके बस दे देते हैं।
तो ये जनरल क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व कर पाए तो आप कोई भी नंबर उसमें अगर पुट करते तो भी आ जाएगा आपका आंसर। इवैल्यूएशन करना है, जब भी इवैल्यूएशन करना है कंपेयर करो इसको डेफिनेशन से। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का डेफिनेशन सबको याद है क्या? इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity, from s to infinity e raised to minus st into f of t into dt। ये है आपकी डेफिनेशन, राइट? अगर राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होगा देन इट इज कॉल्ड एज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f of t। बराबर है? अरे डॉन कौन है? रीनेम करो अपने आप को, डॉन बाद में बनना, जब मैथ्स M3 क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप डॉन बन सकते हो। M3 सबसे बड़ा हर्डल है आपके लिए। डॉन को कॉल करो, पकड़ लो उसको, बाकी लोग पुलिस बन के। चलो, अहमद रजा भी अभी तक सोए हुए हैं, बस ज्वाइन करके खड़े हो गए। संकेत, आपने रोल नंबर चेंज नहीं किया है, वैसे भी अटेंडेंस हो चुका है, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करो। डॉन को पकड़ो जरा, कौन है ये? डॉन को वेटिंग रूम में डाल दिया है, मैसेज करने दो उसको पहले, फिर देखेंगे। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी है, राइट? अगर इस डेफिनेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो आपको एस टू इन्फिनिटी और ई रेस टू माइनस एस टी, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी है, यहाँ पे नहीं है। नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ई रेस टू जीरो है। एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन ना। सो ये इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपेयरिंग विथ क्वेश्चन, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे s की वैल्यू जीरो है, इसीलिए ई रेस टू माइनस एस टी आपका ई रेस टू जीरो टी बन गया। ई रेस टू जीरो टी होता है 1, बराबर है? नेक्स्ट और क्या है? एफ ऑफ टी आपका क्या होगा? डी टी और इंटीग्रेशन छोड़ के जो पार्ट है वो एफ ऑफ टी यहाँ पे है आपका कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस बी टी डिवाइड बाय 2, राइट? सो उसमें से भी आपका एफ ऑफ टी है कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी। सबसे पहले इसका लैप्लास फाइंड आउट करते हैं और फिर डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो आपको लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन मिल जाएगा। लेट Laplace of f of t is Laplace of cos of at minus Laplace of cos of bt है ये। What is Laplace of cos at? s upon s square plus a square minus s upon s square plus b square, बराबर है? अब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करो, Laplace of f of t divided by t, this will be nothing but integration from s to infinity, this is your phi of s, तो ये आ जाएगा phi of s into ds। आप एक्चुअल में लैप्लास का डेफिनेशन ही यूज कर रहे हो या लैप्लास ही फाइंड आउट कर रहे हो फॉर द फंक्शन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये है, फाइंड द लैप्लास ऑफ cos of at minus cos bt डिवाइड बाय t। बस उसमें थोड़ी सी एडिशन आ गई है कि आपको लास्ट के आंसर में s की वैल्यू 0 पुट करनी होगी, राइट? सो दिस विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एस, ऐसे हो जाएंगे, राइट? अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस माइनस, आई एम सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, इंटरनेट चल रहा है क्या अपना? आवाज़ आ रही है बॉयज़?